Hello everyone, I am AK Yogi and welcome to Indian Society class. So, in the last class, we have discussed communalism and we have seen that communalism is particularly political ideology for that there is a certain allegiance for a certain community, allegiance or attachment. So, communalism is basically used to mobilize people because it is political ideology. So we have seen that consequences of communalism, how it get developed in the society through discrimination, and in the last, it actually has a successionist mentality. Like through communalism, just nation get disintegrated. So to address this problem, we have discussed that there are certain multiple society or multiple cultural model in the last class. So we can follow these models. A part of that, we have discussed that how can we address communalism through secularism. So now we are trying to understand and trying to just implement secularism, that how it works at the ground level. So we can address communalism through secularism. So there are various kind of secularism models, and a part of that we have discussed that secularism basically means that we actually treating all religions equally. So secularism in the context of state, we have defined that if state and religions are interacting with each other, so what degree of interaction they will establish, उनका ने क्या interaction रहेगा, पैटर्न किस तरीके का रहेगा, वो हम लोगों ने है जो लास्ट क्लास में देखा था. A part of that, according to degree of interaction, in degree of interaction, what I mean through degree of interaction means that how much you are allowing religion in public sphere or in state affairs. That is called degree of interaction. So through degree of interaction, there are basically three types of models, like Western model, French model, and Indian model. So all these three are having different kind of attitude towards religion. In Western model, we have seen that there is complete isolation, thick wall of separation between religion and state. And in French model, there is discourage of religion, that state is interfering into religious affairs and also demeaning or discourage religious practices. So we have seen that there were some kind of consequences of this model because it is having negative approach towards religion, that French model. And Western model is basically isolated model. So nor religion interfering in state administration, nor state interfering in religious practices. A part of these two model, we also discuss that Indian model, which is actually positive model. Positive model means it is supportive model, that Indian model supporting all religions equally. We have discussed that principal strands of Indian secularism. What are they? I have also given you a trick so that you can memorize Indian secularism's principal strands. One by one हम लोग बताएंगे. First is neutrality. What kind of neutrality? Celebratory. Okay, celebratory neutrality. So celebratory neutrality means that state just not isolating each other, but actually celebrating all religions, they're promoting all kind of religious practices what which are not harmful for general public. So all those practices are promoted in Indian state secularism. Okay. Okay, first point was neutrality. Second, आपके ट्रिक देने के बाद में भी देख रहे हो क्या? अच्छा. अच्छा. हाँ. ओके, हाँ, एक एक करके फर्स्ट था एन से, हम लोगों ने मेमोराइज करा था जो प्रिंसिपल स्टैंड है इंडियन सेकुलरिज्म के. इसलिए हम लोगों ने एक लास्ट क्लास में ट्रिक डिस्कस करा था कि हम लोगों को अगर सेकुलरिज्म पूछा जाए इंडिया का कि कैसा है, तो हमको नेस कैफे याद आना चाहिए, नेस कैफे कॉफी, है ना. तो नेस कैफे में क्या होता है कि एन से न्यूट्रलिटी. सो न्यूट्रलिटी मैंने बताया कि सेलिब्रेटेड न्यूट्रलिटी. सेकंड स्टैंड जो इंडियन सेकुलरिज्म का है वो एन एस से हो गया है. हाँ, नहीं, एज फॉर स्टेट रिलीजन. ओके. सो एस से हो गया है स्टेट रिलीजन, दैट कि स्टेट का पर्टिकुलरली कोई रिलीजन नहीं है. लास्ट क्लास में हमने देखा था कि ऐसे स्टेट एग्जिस्ट करते हैं वर्ल्ड में जो जिनका पर्टिकुलरली स्टेट का भी एक रिलीजन होता है. लाइक यूके का है जो क्रिश्चियनिटी है, पाकिस्तान का है जो मुस्लिम है. इवन देर आर 56 मुस्लिम नेशंस विच आर हैविंग मुस्लिम एज ए इस्लाम एज ए state religion. So that kind of thing. How many Hindu states are there? Having countries having Hindu as a state religion?
none. Even in earlier it was Nepal was there, but even it also got transferred into secular state. Okay. Oh yeah, so there is none. Apart of that, there is some island country, but it is not recognized by UN and all, so that's why we are not mentioning. Okay. So the second point was state religion, and the third point C for concern. So what do you mean by concern? हम नहीं, स्टेट स्टेट स्टेट। हम लोग जब प्रिंसिपल स्टैंड ऑफ इंडियन सेकुलरिज्म को देख रहे हैं ना, तो हम लोग एक्चुअली स्टेट के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं कि स्टेट है ना, वो न्यूट्रल है। इंडिविजुअल्स या पब्लिक न्यूट्रल नहीं है। वो तो अपने रिलीजन्स के लिए अटैच है, वो एलिजेंस है अपनी कम्युनिटी या फिर अपने रिलीजन के लिए। स्टेट है ना, वो न्यूट्रल है। स्टेट का रिलीजन नहीं है। स्टेट है जो कंसर्न नहीं होगी किसी रिलीजन से। कंसर्न रिलीजन का क्या मतलब हुआ? मैंने एक एग्जांपल भी बताया था। एक डे टू डे लाइफ में हम लोग जैसे कहते हैं कि वी आर आई एम कंसर्न अबाउट योर हेल्थ, आई एम कंसर्न अबाउट योर स्टडी, तो दैट इज द मीनिंग ऑफ कंसर्न। यहाँ पर किसी पर्टिकुलर रिलीजन से कंसर्न है, इसका मतलब है कि उसके वेल बींग के लिए कंसर्न है, उसके प्रोरोगेशन के लिए कंसर्न है, उसके प्रोपोगेशन के लिए कंसर्न है, उसकी प्रैक्टिसेस के लिए कंसर्न है, ठीक है, उसके एक्सपेंशन के लिए कंसर्न है। तो ये सारी चीजें हैं ना, तो स्टेट कोई कंसर्न नहीं है। ठीक है, दैट इज द थर्ड पॉइंट। एंड फोर्थ पॉइंट ए फॉर एसोसिएशन। आपको नोट्स मिल गए ना? ओके। सो ए फॉर एसोसिएशन, दैट state is not associating with any religion officially. That is the meaning of. So what is the difference between state religion and state association associating with religion? There are 2 points ना. Second point is state religion, ठीक है, ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। एंड स्टेट एसोसिएशन, एसोसिएट नहीं हो रहे हैं। हम्म, हम्म, ठीक है। जो सेकंड पॉइंट में हम लोग बोल रहे हैं ना, वो ओनरशिप बोल रहे हैं। दैट स्टेट हैव ओनरशिप ऑफ सर्टेन रिलीजन, या स्टेट इज एक्टिंग लाइक ए एक्टिंग एज ए डिवाइस ऑफ सर्टेन रिलीजन। ठीक है, कि इस पर्टिकुलर स्टेट के वो इस रिलीजन के लिए ही स्टेट काम कर रहा है सेकंड पॉइंट में। पर जो फोर्थ पॉइंट है उसमें है कि इवन साथ में उठना बैठना भी नहीं है, या फिर कोई पर्टिकुलरली जो रिलीजन है उसके साथ में है जो एसोसिएट नहीं हो रहा है, फेवरेटिज्म नहीं है उसमें। ठीक है, ओके। दो एंड द फिफ्थ पॉइंट एफ फॉर फ्रीडम। ठीक है, हम लोग एक्चुअली वो चीज कर रहे हैं। हम लोगों ने जो प्रिंसिपल स्ट्रैंड्स थे वो हम लोगों ने स्ट्रिक्ट से मेमोराइज करे थे। ठीक है, एन से न्यूट्रलिटी हो गया था, सेकंड से स्टेट रिलीजन हो गया था, सी से कंसर्न हो गया था, फोर से एसोसिएशन हो गया था, एफ से फ्रीडम। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय फ्रीडम ऑफ रिलीजन इन इंडियन सेकुलरिज्म मॉडल? हम्म, 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 फ्री टू चूज रिलीजन। आप किसी भी रिलीजन को चूज कर सकते हैं। इससे इस ये पर्टिकुलर जो आप चॉइस करोगे, इसका ना तो आपको कोई बेनिफिट मिलने वाला है और ना ही कोई हार्म होने वाला है। ना तो बेनिफिट मिलने वाला है, ना ही हार्म होने वाला है। ठीक है, आपको ना तो ऐसा भी नहीं होगा कि आपका पर्टिकुलर रिलीजन है तो आपको है ना कोई पर्टिकुलर फैसिलिटीज स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा, तो ऐसा नहीं है। और अपार्ट ऑफ दैट आपको हार्म का मतलब है कि पर्टिकुलर कोई सी चीज में है जो डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ेगा, तो ऐसा भी नहीं है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इक्वालिटी। ई फॉर इक्वालिटी। हाँ, हाँ, इक्वालिटी बताओ जल्दी, क्या होती है, क्या इक्वालिटी से क्या मतलब है सेकुलरिज्म का? हम्म, इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल रिलीजन। ओके, ट्रीटमेंट इक्वल हो गया। और इक्वल सेलिब्रेशन हो गया। इक्वल सिटीजनशिप हो गया। इक्वालिटी बिफोर लॉ हो गया। इक्वालिटी बिफोर लॉ हो गया। ठीक है, किसी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ, इक्वल अपॉर्चुनिटी हो गया। ठीक है,
इसके अलावा जो स्टेट का जो इंटरफेरेंस है विच इज कॉल्ड प्रिंसिपल डिस्टेंस, तो स्टेट है जो इतना डिस्टेंस मेंटेन करेगा कि रिलीजियस प्रैक्टिसेज है उनको हार्म ना करे। हम लोगों ने इसका भी डेफिनेशन लास्ट क्लास में राइट करवाया था कि प्रिंसिपल डिस्टेंस का क्या मतलब होता है। इसके अलावा हम लोगों ने कहा था ओकेजनल इंटरवेंशन या फिर ओकेजनल ओकेजनल इंटरवेंशन, ओकेजनल इंटरफेरेंस या प्रिंसिपल इंटरफेरेंस, ये तीनों एक ही बात है। ठीक है, आप कहीं पे जहाँ पे भी मेंशन हो रखा है ना नोट्स में आपके, वहाँ पे तीनों में एक जगह पे लिख लो भली। ठीक है, सिटीजनशिप, ट्रीटमेंट, प्रोटेक्शन, प्रिंसिपल इंटरफेरेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, मोरालिटी एंड रिफॉर्मेट। इसमें हम लोगों ने कहा था कि हम लोग जो स्टेट है पर्टिकुलरली तीन तरीके से रिलीजियस मैटर्स में इंटरफेयर करेगा। देर आर थ्री वेज हाउ स्टेट डू state does interfere in religion। ठीक है, there are three ways how a state will interfere in religious matters or religious practices। What are these three matters? Three ways: that principal interference, constitutional morality, reformative justice। ओके, तो ये तीन तरीके से है जो आपको कुछ वो लिंक हो पा रहा है ना, अभी कुछ नहीं पता चल पा रहा है। अच्छा नहीं, अभी जो मैंने बताया वो भी नहीं समझ में आ रहा। हाँ मतलब जो भी मैंने प्रिंसिपल बताया है, जो सेकुलरिज्म बताया है या फिर कम्युनलिज्म बताया है। हाँ हाँ, तो वही जस्ट जनरल जो चीजें हैं वही है। नहीं ऐसा तो नहीं लग रहा ना कि बिल्कुल ही जस्ट लिंक ही नहीं कर पा रहे हो, लिंक हो रहा है ना। ओके ठीक है, तो हम लोगों ने देखा है कि जो तीन तरीके हैं उसके अकॉर्डिंग है जो स्टेट है जो इंडियन सेकुलरिज्म में, इंडियन सेकुलरिज्म के अकॉर्डिंग तीन तरीके से है जो रिलीजियस मैटर्स में है जो इंटरफेयर करता है। इसके लिए मैंने बोला था कि पर्टिकुलर है जो फर्स्ट है प्रिंसिपल डिस्टेंस, इतनी डिस्टेंस है जो स्टेट है जो रिलीजन के से रखेगा कि वो पर्टिकुलरली रिलीजन की किसी भी चीज को हार्म ना करे। ओके, तो इसको हम लोग प्रिंसिपल है जो इंटरफेरेंस भी बोलते हैं। ओके, हाँ प्रिंसिपल डिस्टेंस, प्रिंसिपल इंटरफेरेंस और ओकेजनल इंटरफेरेंस, ओकेजनल इंटरवेंशन, ये सारी एक ही चीज हो गई। हाँ हाँ, इसमें प्रिंसिपल डिस्टेंस में है कि आप है जो पर्टिकुलरली, हाँ जो थर्ड पॉइंट है ना वो उसमें आ जाएगा इन ओके, रिफॉर्मेटिव जस्टिस या फिर ओकेजनल ओकेजनल इंटरफेरेंस। हाँ मैं वही कह रहा हूँ कि ये जो चीजें है ना प्रिंसिपल इंटरफेरेंस ही तो रिफॉर्मेटिव जस्टिस है। प्रिंसिपल इंटरफेरेंस में एक्चुअली ये जो प्रिंसिपल और इंटरफेरेंस है ना, इन दोनों में दोनों वर्ड आ गए, प्रिंसिपल डिस्टेंस भी आ गई और इंटरफेरेंस भी आ गया। इंटरफेरेंस को ही है जो थर्ड पॉइंट में है जो डिफाइन किया कि व्हाट डू यू मीन बाय इंटरफेरेंस, कि आप इंटरफेयर में क्या करोगे, आप है ना रिफॉर्म करोगे। ठीक है, इसमें एक्चुअली ये जो थर्ड पॉइंट में इसमें सिर्फ रिफॉर्म आ रहा है, रेस्ट्रिक्शन नहीं आ रहा, रेस्ट्रिक्शन यहाँ आएगा। ठीक है, जैसे कोई पर्टिकुलरली इल प्रैक्टिस है रिलीजन से एसोसिएट, वो हो रही है, ठीक है, तो स्टेट है जो उसको पहले कर्व करेगा, उसको रहने रेस्ट्रिक्ट करेगा, तो वो फर्स्ट पॉइंट में आ रहा है। और फर्स्ट रेस्ट्रिक्ट करके उसके बाद में जो थर्ड पॉइंट में इसको रिफॉर्म करेगा, फर्स्ट पॉइंट में रेस्ट्रिक्ट करेगा, थर्ड पॉइंट में रिफॉर्म करेगा। अब ठीक है, नहीं है, क्या दिक्कत है? जैसे हाँ, इंटरफेरेंस दो तरीके का होता है, आप स्टेट वगैरह सब छोड़ो, आप पर्टिकुलर किसी की लाइफ में किस तरीके से इंटरफेयर करते हैं। जैसे पेरेंट्स का एग्जांपल लो, अगर पेरेंट्स है, उनका जो चाइल्ड है वो है जो पर्टिकुलरली कुछ स्टूडेंट है, कोई एजुकेशन ले रहा है, ठीक है, तो जो पेरेंट्स है जो स्टूडेंट की लाइफ में कैसे इंटरफेयर करते हैं, दो तरीके से करते हैं कि एक तो वो गलत संगत में ना पड़े, कोई गलत आदतें ना पड़े, उसके लिए वो क्या करते हैं, रेस्ट्रिक्ट करते हैं, रेस्ट्रिक्ट ही करते हैं ना उसको गलत आदतों से। और दूसरा काम क्या करते हैं, वो रिफॉर्म करते हैं, उसको है जो पर्टिकुलरली है जो कुछ फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, उसको है जो उसको जो भी लर्निंग है या फिर और भी उसके करियर के लिए जो भी अच्छा है उसके लिए फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। तो दो तरीके से ही तो आप इंटरफेयर करते हो किसी की लाइफ में, या तो उसको रेस्ट्रिक्ट करते हो पॉजिटिवली, पॉजिटिव इंटरफेरेंस की बात हो रही है यहाँ पे। जो पेरेंट्स का एग्जांपल मैंने इसलिए लिया क्योंकि जनरली जो पेरेंट्स हैं वो अपने जो किड्स हैं उनकी लाइफ में पॉजिटिव इंटरफेरेंस ही कर तो करते हैं। तो पॉजिटिव इंटरफेरेंस, नेगेटिव इंटरफेरेंस कौन कर रहा था अगर इसकी बात करें सेकुलरिज्म की, तो फ्रेंच कर रहे थे, राइट। हाँ, तो ये चीज है ना, और हम लोग क्या कर रहे हैं, इंडियन सेकुलरिज्म क्या कर रहा है, पॉजिटिव इंटरफेरेंस कर रहे हैं। और पॉजिटिव इंटरफेरेंस दो तरीके से हो सकता है,
कि एक तो गलत चीज़ों से है ना उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाए, और दूसरा है कि उसको फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी जाए या फिर रिफॉर्म कर दिया जाए। अब ठीक है, तो रेस्ट्रिक्शन इंटरफेरेंस में मैंने कहा कि यहाँ पे है जो रेस्ट्रिक्शन होगा पहले पॉइंट में, और जो थर्ड पॉइंट है उसमें है जो रिफॉर्म होगा। तो इंटरफेरेंस दो तरीके का होता है। अब ठीक है, तो यहाँ तक ये सारी चीज़ें हैं हम लोगों ने लास्ट क्लास में कर ली थी। उसके बाद में अब हम लोग इस क्लास में स्टार्ट करेंगे कि व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस प्रोवाइडेड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन टू स्ट्रेंथन सेकुलरिज्म। ओके, ऑल्दो जो सेकुलरिज्म वर्ड है, जो सेकुलर वर्ड है, वो हमारे प्रियम्बल में 42nd अमेंडमेंट 1976 में इंट्रोड्यूस किया गया था। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में सेकुलर वर्ड नहीं था, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो हम लोगों ने बोला है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स, कि कॉन्स्टिट्यूशन है जो उसकी पर्टिकुलरली कोई आइडियोलॉजी क्या है, तो जब हम लोग उसकी बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की सोल की बात करते हैं, तो हमको पता चलता है कि यस, कॉन्स्टिट्यूशन जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ओरिजिनलिटी में भी सेकुलरिज्म को प्रमोट करता है। और इसके लिए हम लोगों ने हिस्टोरिकल इवोल्यूशन भी देखा था इंडिया का, कि जो ऐसा नहीं है कि जो सेकुलरिज्म है कोई नई टर्म है हमारे लिए। हम लोग एंशियंट टाइम से है जो इसको फॉलो करते आ रहे हैं, हमारे कल्चर में है जो सेकुलरिज्म है। ठीक है, मैंने इवन स्क्रिप्चर्स का भी एग्जांपल दिया था कि देर देर आर स्क्रिप्चर्स, वहाँ पे इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल लिखा हुआ है, कि आप है जो पर्टिकुलर कोई रिलीजन को, किसी भी गॉड की वर्शिप कर रहा है, तो भी आप उसको है जो इक्वल ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ है जो हमारे स्क्रिप्चर्स में भी, जो क्योंकि हमने बोला था जो पहली क्लास हुई थी उसमें हम लोगों ने कहा था कि जो इंडियन सोसाइटी है उसकी जो सोल है वो है स्पिरिचुअलिटी। वो स्पिरिचुअलिटी, रिलीजन, स्क्रिप्चर्स, रिलीजियस टेक्स्ट, उसके बेसिस पे बनी हुई है। तो जो सेकुलरिज्म है कोई नया वर्ड नहीं है। तो इवन ये जो प्रिंसिपल्स हैं, क्योंकि ये हमारी सोसाइटी के वैल्यू सिस्टम का पार्ट है, तो इस वजह से ये कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोगों ने अलग से मेंशन ना भी किया हो, फिर भी ये कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल्स हैं, जो उसके प्रोविजंस हैं, उसमें रिफ्लेक्ट करता है। और इसी वजह, इसी जो पर्टिकुलर जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रिंसिपल है, कॉन्स्टिट्यूशन की जो थीम है, कॉन्स्टिट्यूशन की जो आइडियोलॉजी है, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन मॉरलिटी का मतलब है कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन को एज ए एक डिवाइस यूज नहीं करना है। आप कॉन्स्टिट्यूशन को आप ऐसे नहीं देखोगे कि ये जस्ट एक फॉर्मेट है, कि भाई हाँ इसमें पर्टिकुलर इतने आर्टिकल्स लिखे हुए हैं, इतने लिस्टिंग हो रखी है, ऐसे नहीं देखोगे, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा क्या है, उसकी आइडियोलॉजी क्या है, उसको देखोगे आप। इवन जो सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट होते हैं, वो भी है जो कॉन्स्टिट्यूशन को जस्ट एक टूल की जैसे नहीं लिया जाता, उसकी पर्टिकुलर आइडियोलॉजी है ना, उसको है ना समझ के लिया जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिस क्या है। लाइक 1973 केशवानंद भारती केस, कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा कि, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जस्ट कॉन्स्टिट्यूशन में कई सारी चीजें हैं जो सेपरेटली मेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ के हमको ये पता चलता है कि कुछ चीजें हैं जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक आइडियोलॉजी है, बेसिक थीम है कॉन्स्टिट्यूशन की। ठीक है, तो उस थीम में इवन सेकुलरिज्म को भी है जो आइडेंटिफाई किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ओके, तो हम लोग देख लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ कहाँ पे है जो सेकुलरिज्म वर्ड है। जैसे मैंने कहा कि सेकुलरिज्म वर्ड है जो 42nd अमेंडमेंट में प्रियम्बल में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। तो हमारी जो प्रियम्बल में पर्टिकुलर स्टेट के कैरेक्टरिस्टिक हैं, किसी को आइडिया है क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं स्टेट के, हमारे इंडियन स्टेट के? वी, है ना, प्रियम्बल पता है ना आपको? हाँ, कि दैट वी द पीपल ऑफ इंडिया सोलेमनली डिक्लेयर इंडिया एज ए, हाँ, सोवरेन्स, हाँ, और डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। ठीक है, तो ये जो दो एस थे ना, उसमें एक एस और ऐड कर दिया गया था, सेकुलर। ठीक है, तो ये जो वर्ड है जो प्रियम्बल में ऐड हुए हैं, तो ये तो है ना, हम लोगों ने जस्ट देखा है कि एक लिटरली जो वर्ड है वो कहाँ पे मेंशन हो रखा है। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं, वो हैं जो हमारे पर्टिकुलरली रिलीजियस जो कंटेक्स्ट है उसमें है, जो इस जो रिलीजन है उनको अथॉरिटी देते हैं, रिलीजन फ्रीडम है जो इंडिविजुअल्स को देते हैं। ठीक है, और देखते हैं कहाँ पर, इक्वालिटी में, इक्वालिटी राइट्स। मैंने इक्वालिटी के भी जो आपको आर्टिकल्स हैं जो मेमोराइज करवाए थे। ठीक है, पार्ट 3, फंडामेंटल राइट्स।
इक्वालिटी के जो आपके जो पर्टिकुलर 14 से 18 है, क्या है वो? एल डी आउट है, ठीक है। हाँ, एल डी आउट। ओके, ये हम मैं थोड़ा सा, जब पॉलिटी के हैं तो कुछ है ना ट्रिक्स मैं बताता हूँ, जिससे कि है जो आप लॉन्ग टर्म तक है जो इसी कॉन्सेप्ट को मेमोराइज कर सकते हो। ठीक है, तो ये मैंने बताए थे कि जो आर्टिकल 14 से 18 जो इक्वालिटी की इक्वालिटी राइट्स हैं, तो उसमें है जो 14 आर्टिकल है, एल से है जो लॉ है, इक्वालिटी बिफोर लॉ। 15 है वो है डिस्क्रिमिनेशन। 16 है वो है अपॉर्चुनिटी एंड स्टेटस। यू कैन राइट, जिसको नहीं पता है, अनटचेबिलिटी। 18 है टाइटल। ठीक है, क्योंकि जो पर्टिकुलर जो अवार्ड्स हैं वो टाइटल का पार्ट नहीं होते हैं। महाराज धीराज सर, जो है ना, ये जो चीजें हैं ना, वो है जो टाइटल का पार्ट होते हैं। बट जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होगी, जैसे कुछ लोग हैं जो अपने नाम के आगे डॉक्टर यूज कर रहे हैं, ठीक है, कुछ लोग इंजीनियर कर रहे हैं। हाँ, तो वो कर सकते हैं। इवन आपको अगर कोई अवार्ड मिल रहा है तो इवन वो भी है जो यूज किया जा सकता है। ठीक है, पद्मश्री पद्म भूषण जो भी है, तो वो है जो अपने 18 का वायलेशन नहीं करते हैं। तो ये है जो इक्वालिटी है जो कॉन्स्टिट्यूशन में है जो प्रोवाइड की गई है, रिगार्डलेस ऑफ एनी कास्ट, एनी रिलीजन, रेस, दैट जेंडर, किसी के बेसिस पे आपको है जो इस पर्टिकुलर जो पार्ट 3 के जो इक्वालिटी वाले राइट्स हैं उसमें उनसे वंचित नहीं किया जाएगा। ओके, उनसे एलिमिनेट नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इंडियन इस पर्टिकुलर इक्वालिटी के राइट्स हमको ये पता चल रहा है कि ये सेकुलरिज्म को प्रमोट कर रहा है। सेकुलरिज्म को है जो इंडियन स्टेट में है जो एस्टेब्लिश कर रहा है। ये और ये जो आर्टिकल्स हैं वो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के हैं, ऐसे नहीं है कि अमेंडमेंट करके बाद में डाले गए हैं। तो इससे हम इन पर्टिकुलर आर्टिकल से हमको ये पता चल रहा है कि जो सेकुलरिज्म है वो इंडियन ओरिजिनल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से रिफ्लेक्ट कर रहा था। चाहे वो वर्ड पर्टिकुलर मेंशन ना हुआ हो, लेकिन ओरिजिनलिटी में ये जो कॉन्सेप्ट है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में था। ओके, तो लॉ है, लॉ आर्टिकल 14 का इक्वालिटी बिफोर लॉ। ठीक है, ये तो मैंने जस्ट मेमोराइज करने के लिए एक एक वर्ड में कर दिया है, वरना इसको हम लोग थोड़ा एक्सप्लेन करें तो ये है इक्वालिटी बिफोर लॉ। यानी कि आपके इक्वालिटी बिफोर लॉ भी दो तरीके की होगी। दो तरीके की होगी कि एक एक तो इस तरीके की होगी कि कोई भी लॉ ऐसा नहीं बनाया जाएगा जो किसी पर्टिकुलर पर्सन को है जो डिमीन करे और किसी दूसरे पर्सन को है जो अपलिफ्ट करे। तो ऐसा नहीं होगा। ऐसा कोई लॉ नहीं बनाया जाएगा जो किसी एक कम्युनिटी को हार्म करे और दूसरी कम्युनिटी को है जो सपोर्ट करे। ऐसा लॉ नहीं बनेगा। पहली चीज तो एक तो ये हो गया इक्वलिटी भी फॉलो। दूसरा है कि जो भी लॉ बना दिया गया है वो है जो लोगों पे है जो इक्वली है जो इम्प्लीमेंट होगा। ऐसा नहीं होगा कि कोई पर्सन अगर किसी कम्युनिटी पे है, कम्युनिटी का है, तो उस पे है जो पर्टिकुलर लॉ काम नहीं करेगा, और कोई दूसरी कम्युनिटी का है तो उस पर काम करेगा। ऐसा नहीं, सब पे है वर्क करेगा। तो मतलब दो तरीके के हो गए। ठीक है, ये आप अगर अभी अगर नोट डाउन करना चाहे तो कर सकते हैं, वरना आपको पॉलिटी में भी इसको नोट डाउन करवाया जाएगा। इंडियन पॉलिटी की जो क्लासेस होंगी अभी करना है, अगर आपको मेमोराइज मतलब अगर मेमोरी पर्पज के लिए तो कर सकते हो। हाँ, करना है। ठीक है, आर्टिकल 14, इक्वालिटी बिफोर लॉ। देर देर आर टू टाइप्स ऑफ इक्वालिटी प्रोवाइडेड बाय दिस आर्टिकल। फर्स्ट, फर्स्ट, देर शैल बी, देयर शैल बी नो लॉ, देयर शैल बी नो लॉ, एन ओ नो, नो लॉ। ठीक है, मेड बाई लेजिस्लेचर which is
discriminatory towards any citizen based on race, religion, caste, sex, place. ओके, सेकंड टाइप, हाँ, प्लेस पे होता है ना, जैसे कि पर्टिकुलरली अगर किसी एरिया में, अगर जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, रियल लाइफ एग्जांपल दूं, तो बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे बिहार के लोग होते हैं, बिहार की जो लेबर है, वो जब दूसरे स्टेट में जाती हैं, तो वहाँ पे है जो पर्टिकुलरली उनका है जो एक डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर फेस करना पड़ता है। एक अगर जैसे प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल दो, तो महाराष्ट्र में एक बार ऐसा हुआ था, जो मनसे वगैरह और वो सारा जो एक पॉलिटिकल जो चीज़ थी ना, तो उसमें ये हुआ था कि हाँ, उन्होंने कहा था कि जो महाराष्ट्र के लोग हैं, उनके जो रिसोर्सेज हैं, उनके जो बिजनेस पे जो बिजनेस बिहारी जो लोग लेबर है वो इफेक्ट डाल रहे हैं। तो बिहारी इसके को है जो निकालने वाला भी एक मूवमेंट चला था वहाँ से, महाराष्ट्र से। ठीक है ना, उनको है जो टॉर्चर किया, मतलब उनको हार्म किया गया था। ठीक है, तो ये क्या था, डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर था ये। ठीक है, उसके बाद में ने उस चीज़ को है जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के अकॉर्डिंग है जो फिर सारा रिमूव किया गया था, और बिहारी को है जो पर्टिकुलरली वो महाराष्ट्र में वो राइट मिले थे। ठीक है, कि वो वहाँ पे रह के अपना बिजनेस कर सकते हैं, रेजिडेंस ले कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तरीके से, तो इवन जैसे बहुत बार ये भी होता है कि कोई स्टेट होता है, वो अपने जो स्टेट के जो लोग हैं, उनको है जो, अब जो स्टेट एम्प्लॉयमेंट है, जो स्टेट की सर्विसेज हैं, उसमें है जो वो रिजर्वेशन वगैरह भी करवा देते हैं। ठीक है, उनको प्रमोट करते हैं। बाहर के जो पर्टिकुलर जो सिटीजन्स हैं, जो बाहर के स्टेट के हैं, उनको है जो वो चीज़ नहीं मिल पाती है, वो भी एक तरीके का डिस्क्रिमिनेशन है। पर सर्टेन डिस्क्रिमिनेशन अलाउड भी है, जैसे कि जो मैंने सेकंड एग्जांपल दिया है ना, ये डिस्क्रिमिनेशन अलाउड है, क्योंकि स्टेट के जो रिसोर्सेज हैं उसमें ऑब्वियस सी बात है कि पहले तो स्टेट के जो लोग हैं, डोमिसाइल जो लगता है वो स्टेट का लगता है पहले। बट इसमें कोई भी स्टेट ये कोई ऐसा रूल नहीं बना सकता है कि बाहर के स्टेट वाले, जो दूसरे स्टेट वाले हैं, वो हमारे स्टेट में आके वर्क नहीं कर सकते। ऐसा स्टेट लॉ नहीं बना सकता। हालांकि पॉलिटिकली है जो लोग हैं जो ऐसा सोच लेते हैं कभी कभी। ठीक है, ऐसा है जो लॉ है जो इवन पंजाब में भी आया था। ठीक है, तो वो ऐसे जो लॉज हैं तो वो स्टक डाउन हो जाते हैं फिर, मतलब स्टक डाउन मतलब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, खत्म कर दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके के लॉ बनते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट है दैट देर देर इज इक्वल jurisdiction of a law on every citizen और नॉन सिटीजन। एक्चुअली जो आर्टिकल 14 है, वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो इंडियन सिटीजन है उस उन्हीं को ही दिया गया है प्रोटेक्शन, इवन जो जो सिटीजन नहीं है ना, उनको भी दिया गया है। इनको, हाँ, वो रेजिडेंस हो सकते हैं, या फिर इवन जस्ट घूमने फिरने आए हों, फॉरेनर्स जो भी हैं। हाँ, हाँ। बहुत बार बहुत सारे लोग, जरूरी नहीं ना कि रेजिडेंट हो। आप रेजिडेंट किसको बोलते हैं, रेजिडेंट की भी डेफिनेशन है। ठीक है, कि पर्टिकुलरली जो एक पर्सन है, वो है जो, अगर सिटीजनशिप के क्राइटेरिया में बात करें, जो 7 ईयर्स तक रह रहा है उसको रेजिडेंट बोलते हैं। ठीक है, जो टेक होता है टेम्पररी रेजिडेंट होता है, कि 1 महीने हो गया तो उसको हम लोग रेजिडेंट नहीं बोलेंगे, वो जस्ट एक विजिटर है, टूरिस्ट है वो। ठीक है, तो मतलब रेजिडेंट भी होते हैं, टूरिस्ट भी होते हैं, इनको भी है जो आर्टिकल 14 में है जो प्रोटेक्शन मिला हुआ है। ठीक है, लेकिन 15 और 16 में नहीं मिला हुआ है। आगे हम लोग आ रहे हैं आर्टिकल 15। इसको इनको मैं बस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ही दे रहा हूँ, आप डिटेल में है जो पॉलिटी की क्लास में इसको इनको स्टडीज करेंगे। ठीक है, आर्टिकल 15, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन।
throw this right, throw throw, throw this right, all citizens of India are provided protection from discrimination based on वही सारा रेस, रिलीजन, कास्ट जो आपने पहले लिखा है वो रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस। ठीक है, इसमें इस पर्टिकुलर जो आर्टिकल है हेयर, ये लिख सकते हो हेयर डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिमिनेशन कैन बी डन बाई स्टेट थ्रो अच्छा इसमें ये लिख दो, नहीं तो आप आगे कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं एक्चुअली डिस्क्रिमिनेशन को डिफाइन कर रहा हूँ, पर आप है ना इसको आर्टिकल से ही अटैच कर दो कि कैन नॉट बी डन बाई, हेयर कैन बी डन बाई लिखा है ना मैंने, कैन नॉट बी डन बाई स्टेट थ्रू एनी लॉ और एग्जीक्यूशन एंड थ्रो एनी लॉ और एग्जीक्यूशन एग्जीक्यूटिव, हाँ एग्जीक्यूटिव वाला एग्जीक्यूशन ऑफिशियल्स और बाई प्राइवेट इंडिविजुअल। मतलब ये जो पर्टिकुलर जो आर्टिकल 15 है वो सिर्फ स्टेट को ही नहीं बाइंड करता है डिस्क्रिमिनेशन के लिए, बल्कि जो इंडिविजुअल्स है ना, या फिर प्राइवेट जो कंपनीज हो गई, प्राइवेट लाइफ हो गई, जो भी हो गई, उसमें भी आपको डिस्क्रिमिनेशन अलाउड नहीं करता है। ये प्रोटेक्शन है जो आर्टिकल 15 देता है। ठीक है, सो इट इज एक्चुअली अगेंस्ट नॉट जस्ट स्टेट बट आल्सो प्राइवेट इंडिविजुअल आल्सो। ओके, सो इसमें पर्टिकुलरली कैसे आ रहा है रिलीजन सेकुलरिज्म, कैसे आ रहा है कि अगर किसी का रिलीजन है, पर्टिकुलर रिलीजन के बेसिस पे उसको डिस्क्रिमिनेशन फेस नहीं करना पड़ेगा। और ऐसा भी नहीं है कि जस्ट स्टेट के मैटर में डिस्क्रिमिनेशन फेस नहीं करना पड़ेगा, इवन प्राइवेट लाइफ है उसमें भी डिस्क्रिमिनेशन फेस नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, आर्टिकल 16 एवरीवन विल प्रोवाइड एवरी सिटीजन विल बी, चलो, एवरी सिटीजन विल बी प्रोवाइडेड इक्वल अपॉर्चुनिटी। अब जो अपॉर्चुनिटी है उसमें लिख सकते हो, मैं ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल की डेफिनेशन नहीं दे रहा हूँ ना, उसको वो कंफ्यूज मत करना कि जो एक एग्जैक्टली, हाँ मैं जस्ट एक एनालिसिस दे रहा हूँ। ठीक है, वो एक पर्टिकुलर जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो पर्टिकुलर आर्टिकल की जो वो स्टेटमेंट है, एक पर्टिकुलर टेक्स्ट है, वो नहीं लिखवा रहा मैं जस्ट एक एनालिसिस दे रहा हूँ। ठीक है, तो आर्टिकल 16 का मैं एनालिसिस दे रहा हूँ, 15 का मैंने एनालिसिस दिया है। हाँ, क्या, हम्म, तो हाँ यूज कर सकते हो। हम्म हम्म हम्म, हाँ चलेगा। हाँ हाँ, आपका वो जो पर्टिकुलर मैटर है वो एड्रेस हो जाना चाहिए। ठीक है, आर्टिकल 16 में क्या लिख दिया आपने, एवरी सिटीजन इक्वल अपॉर्चुनिटी। सो इसमें अगर नीचे लिख दो अपॉर्चुनिटी ऑफ थ्री टाइप्स ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड स्टेटस। कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, जितनी सोसाइटी की आपने क्लास ले ली उसके अकॉर्डिंग। हम्म, हाँ 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 हाँ, यस, ठीक है, तीन तरीके की अपॉर्चुनिटी हो जाएंगी, पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी, सोशल अपॉर्चुनिटी एंड
इकोनॉमिकल अपॉर्चुनिटी। हाँ, भाई ह्यूमन को क्या चाहिए, ये तीन चीजें ही तो चाहिए। कर लिया, मेंशन कर लिया। हमारी सेकुलरिज्म के अकॉर्डिंग है जो हमारी जो तीन तीन जो आर्टिकल है ना इक्वालिटी के, वो है जो कंटेक्स्ट में देखें तो ये तीन है जो काम के हैं। ठीक है, अनटचेबिलिटी और टाइटल है वो ठीक है, बट सेकुलरिज्म का पर्टिकुलर इसमें कोई मैटर है नहीं ऐसा। ठीक है, वो तो मेरे को जब सारा जब तीन आर्टिकल बता रहा था तो मैंने सोचा कि सारा इक्वालिटी बता देता हूँ आपको। इसके बाद में फ्रीडम को देखें कि फ्रीडम ऑफ हमको जो एक्सप्रेशन और स्पीच वगैरह का भी दिया हुआ है। ठीक है, तो फ्रीडम में हम लोग कर सकते हैं, फ्रीडम का भी मैं चीज़ें मेमोराइज करवा देता हूँ। हाँ हाँ, तो इसका फ्रीडम का भी है जो जो आर्टिकल्स हैं, वो अब जब हम लोग कर ही रहे हैं तो मेंशन करवा देता हूँ मैं। फ्रीडम, ये एक्चुअली फ्रीडम और इक्वालिटी हम लोग क्यों डिफाइन कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने प्रिंसिपल स्टैंड में देखा है कि हमको ने क्या मिला है, जो लास्ट के जो एफ ए है ना, कैफे में एफ ई है, क्या है वो लास्ट का तो इक्वालिटी था और एफ का फ्रीडम था। इस वजह से हम लोग इक्वालिटी और फ्रीडम वाले जो आर्टिकल हैं वो रिफर कर रहे हैं। ठीक है, तो फ्रीडम इक्वालिटी के आर्टिकल आपने देख लिए, फ्रीडम का जो आर्टिकल है वो है 19 से लेके, ठीक है, 22 तक। या नहीं, अरे वो अलग मेंशन है, 22 मेंशन नहीं है। ठीक है, जो फ्रीडम है वो उसके है आर्टिकल 19 से लेके 22 तक है। ठीक है, तो फ्रीडम के 19 से लेके 21 के आपको मेमोराइज करने हैं। फ्रीडम के है 19 से लेके 22, 19, 20, 21 और 22। इसमें आपको है ना जो वर्ड याद कर मेमोराइज करना है, वो ये है कि आपको जो फ्रीडम मिलना है वो बिल्कुल सॉलिड होना चाहिए। ठीक है, सॉलिड नहीं होना चाहिए मतलब कि स्टैटिक होना चाहिए, कोई ब्रेक ना कर सके उसको। जस्ट मैं मेमोराइज करने का ट्रिक बता रहा हूँ। ठीक है, सॉलिड होना चाहिए, लिक्विड नहीं होना चाहिए कि आपका फ्रीडम है जो बह जाए। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए सॉलिड होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया सॉलिड। हाँ, सॉलिड से देखो क्या बन रहा है, आप गेस करो क्या बन सकता है। स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ओ से ऑफेंस। ठीक है, कन्विक्शन, ये मैं जस्ट एक वर्ड कर रहा हूँ, उसको फिर आपको मेमोराइज के लिए, ठीक है, उसके बाद में मैं फिर आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ऑफेंस मतलब कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस, वो है आर्टिकल 20 में। एल आई से क्या बन रहा होगा, ठीक है, लाइफ। और डी से प्रोटेक्शन अगेंस्ट इलीगल डिटेंशन। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये हम लोग सेकुलरिज्म के कॉन्सेप्ट में ये हम लोग ये आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, जैसे लगा लास्ट का हम लोग देखे तो ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर के कोई रिलीजन का पर्सन है तो आपने उठा के उसको जेल में डाल दिया। ठीक है, यू कैन नॉट डू दैट। राइट टू लाइफ है, डिटेंशन मतलब जेल में डालना, बंद करना, बंद करना। तो है ना, चाहे जेल में डालो या फिर किडनैप करके यहाँ पर्टिकुलर किसी बिल्डिंग में डालो, जो भी है, मतलब आप उसको किसी को है जो कैद करके नहीं रख सकते। तो ये है, तो किसी ये सेकुलरिज्म के कॉन्सेप्ट में किस तरीके से हो गया कि आपका पर्टिकुलर कोई रिलीजन का अगर पर्सन है तो कोई भी, ना तो गवर्नमेंट स्टेट या फिर कोई प्राइवेट इंडिविजुअल है, जस्ट बिकॉज की कोई पर्सन है जो किसी और पर्टिकुलर रिलीजन से बिलोंग करता है, आप ऐसा नहीं कि उसको डिटेन कर लो। तो ये इसका प्रोटेक्शन है जो आर्टिकल 22 देता है। ठीक है, मेनली है जो प्राइवेट प्लेयर तो वैसे भी वो तो क्राइम में आ जाता है अगर आपने किडनैप किया है तो, पर ये जो पर्टिकुलर जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो एक्चुअली स्टेट के अगेंस्ट होते हैं। ठीक है, इसलिए फंडामेंटल राइट्स को हम लोग ये भी बोलते हैं नेगेटिव ऑब्लिगेशन ऑन स्टेट। ये एक तरीके की नेगेटिव ऑब्लिगेशन है, स्टेट को रेस्ट्रिक्ट करते हैं ये लोग, फंडामेंटल राइट्स हैं जो। तो जो डिटेन है जो प्राइवेट तो खैर वैसे कैसे भी नहीं कर सकता है, इवन है जो स्टेट है या गवर्नमेंट की जो भी है ना मशीनरी है, एग्जीक्यूटिव्स हैं, वो भी आपको डिटेन नहीं कर सकते। उनको एक पर्टिकुलर ग्राउंड चाहिएगा डिटेन करने का। ठीक है, वो डिटेल में आप है जो इंडियन पॉलिटी में पढ़ोगे। ठीक है, राइट टू लाइफ सबको है, भले वो किसी भी रिलीजन से बिलोंग करता हो।
राइट टू लाइफ सबको है, इवन राइट टू लाइफ में फिर बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, ठीक है, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग जजमेंट्स में उसको राइट टू लिव लाइफ को डिफाइन किया गया, यानी कि जैसे कि आपको एक क्लीन एनवायरनमेंट होगा, फ्री लीगल एड मिल सकती है आपको, फ्रीडम ऑफ चॉइस है आपके पास में, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो, राइट टू प्राइवेसी है, तो ये सारी चीज़ें आपको राइट टू लाइफ में मिल जाती हैं। ऑफेंस में ये है कि अगर पर्टिकुलर किसी पर्सन ने ऑफेंस किया भी है, तो ऐसा आप ट्रीट नहीं करोगे कि आप अगर किसी एक रिलीजन का है तो उसको तो आप है जो ऑफेंस में इतना जब स्ट्रिक्टनेस रहेगी और दूसरे में स्ट्रिक्टनेस नहीं रहेगी, दूसरे रिलीजन का है तो नहीं रहेगी। सपोज करो कि अगर जैसे हिंदू मुस्लिम का देख लेते हैं, अगर हम लोग क्योंकि सेक्युलरिज्म में हम लोग रिलीजन की बातें कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि आप अगर कोई पर्सन हिंदू है तो उसको आप है जो बिना ऑफेंस साबित हुए ही आप है ना उसको जेल में डाल दोगे, और मुस्लिम है तो उसका ऑफेंस साबित हो भी रहा है तो भी आप नहीं डाल रहे हो, या इसका वाइस वर्सा भी एग्जाम्पल हो सकता है, ठीक है, तो ऐसा नहीं करोगे आप है जो अगर किसी का ऑफेंस अगर हो चुका है, कन्विक्ट हो चुका है, तभी आप है जो उसको पनिशमेंट देने के का राइट है आपके पास में, अदरवाइज नहीं है। ओके। 19 स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, इसमें भी 19 एक्चुअली 19 क्लॉज वन है, और 19 क्लॉज वन में भी फिर छह तरीके के हैं, जो अभी फिलहाल मैं नहीं बता रहा, ए बी सी डी ई एफ नहीं है, जी है, ठीक है, ये आप इंडियन पॉलिटी में डिटेल में देखोगे, ठीक है, तो 19 वन का क्या है, स्पीच एंड एक्सप्रेशन मैन है। ओके। स्पीच एंड एक्सप्रेशन का मतलब है कि आप अगर पर्टिकुलर किसी रिलीजन से बिलोंग करते हो तो आप है जो अपनी रिलीजियस प्रैक्टिसेज या वर्शिप है वो आप है जो वोकल हो उसके लिए, आप है जो उसके बारे में बात कर सकते हो, आप अपनी वर्शिप है वो इवन आप है जो स्पीच के थ्रू एक्सप्रेस कर सकते हो, ठीक है, आपको कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं प्रोवाइड किया जाएगा, इसलिए हम लोग देखते हैं बहुत बार कि इवन मस्जिद से है जो स्पीकर से है जो नमाज है सुनाई दे रही होती है, या फिर रास्ते में नमाज पढ़ी जा रही होती है, ठीक है, या फिर है ना कुछ लोग हैं जो रिलीजन अपने रिलीजन का जो स्लोगन्स हैं वो पब्लिकली है जो साउट कर रहे होते हैं, तो वो हम लोग देखते हैं इंडियन सेकुलरिज्म में, तो दैट इज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ओके, ये हो गया यहाँ तक। इसके अलावा जो अगर रिलीजन के जो बेसिकली मतलब पर्टिकुलरली अगर किस कौन से कोई से आर्टिकल रिलीजन को डायरेक्ट टारगेट कर रहे हैं, तो वो कर रहे हैं 25 से लेकर 28। सो ये जो 25 से लेकर 28 है वो है फ्रीडम ऑफ रिलीजन। 25, 26, 27, 28, इसमें मैं थोड़ा सा आपको ज़्यादा बता दूंगा, वो मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि ये जो पर्टिकुलर डिटेल में है ना आपको वैसे इंडियन पॉलिटी में बताया जाएगा, हम लोग सिर्फ यहाँ पे रेफरेंस ले रहे हैं, और क्योंकि आपकी इंडियन पॉलिटी क्लास अभी नहीं हुई है इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ओके। हालांकि आपकी है जो थोड़े टाइम में इंडियन पॉलिटी की क्लास स्टार्ट होने वाली है, ठीक है, तो जो आर्टिकल 25 है उसमें है कि आप पर्टिकुलर किसी भी रिलीजन का, अच्छा इसका भी आपको ट्रिक देखना है। हम्म 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 हम्म, हाँ ठीक है, चलो बताओ 26 क्या है आर्टिकल। 27, हम लोगों ने कम्युनलिज्म पढ़ा है ना, उसमें हम लोगों ने देखा कि कम्युनलिज्म में पर्टिकुलर जो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जो कम्युनलिज्म है वो किस पे बेस्ड है, रिलीजन पे, तो रिलीजन पे एक्चुअली क्या हो रही होती है, मारकाट वगैरह हो रही होती है, जो रिटेलिएटरी जो स्टेज होती है उसके बाद में वायलेंस स्टार्ट हो जाता है, उससे पहले हम लोगों ने देखा था वेलफेयर इज रिट्रीटिस्ट, हाँ, एसिमुलेशन और रिट्रीटिस्ट हम लोगों ने तीन देखे थे, और उसके बाद में फिर रिटेलिएटरी, और उसके बाद में सेपरेटिस्ट और सक्सेशनिस्ट, सक्सेशनिस्ट हम लोगों ने लास्ट की तीन स्टेज देखी थी, तो जो रिटेलिएटरी है वहां से वायलेंस स्टार्ट हो जाता है, तो यानी कि क्या है ना रिलीजन के मैटर में क्या होगा, वायलेंस होगा, चीर फाड़ होगी, चीर फाड़ कौन करता है, डॉक्टर करता है, डॉक्टर के लिए आप कौन सा एग्जाम देते हो, आजकल तो नीट देते हैं वैसे है ना, पीएमटी देते हो ना, तो ये है पीएमटी, ठीक है, और जो लास्ट वाला है पीएमटी लेने के लिए आपको कुछ इंस्ट्रक्शन फॉलो करने पड़ते हैं, इंस्ट्रक्शन फॉलो करने पड़ते हैं एग्जाम को पास करने के लिए, लेक्चर लेते हो या जो भी करते हो, ये लास्ट वाला है इंस्ट्रक्शन, पीएमटी के इंस्ट्रक्शन से पास हो गए, एक सेकंड, ठीक है, इंस्ट्रक्शंस, पीएमटी इंस्ट्रक्शन, ठीक है, आज की क्लास के बाद में आपको फंडामेंटल राइट्स याद रहने चाहिए फिर ना, ठीक है, तो ये जो 25 है वो है प्रैक्टिस, प्रोपोगेट एंड प्रोफेस रिलीजन, ठीक है, राइट,
प्रोफेस, PROFFESS, ठीक है। यानी कि आपको पास में या इंडियन सिटीजन्स के पास में फ्रीडम है, राइट है कि वो अपने रिलीजन की प्रैक्टिसेस को फॉलो करे, उसको है जो रिलीजन की प्रैक्टिसेस को दूसरों को बताए, इवन जो जो रिलीजन की प्रैक्टिस है उनको है जो एक्सप्लेन करे, एजुकेट करे लोगों को। तो ये सारी चीज़ें हैं, यानी जो प्रोपोगेट है उसमें कन्वर्जन वगैरह भी आ जाता है कि आप है जो, हाँ ठीक है। तो ये होगा आर्टिकल 25। ओके, यानी कि आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है या फिर तो ये है जो इंडियन सेकुलरिज्म है, वो आपको राइट प्रोवाइड करता है कि आप अपने रिलीजन की प्रैक्टिस भी कर सकते हो। सो दैट हम लोग इसको किस कॉन्टेक्स्ट में समझ रहे हैं, सेकुलरिज्म के कॉन्सेप्ट में, ठीक है, कि हर रिलीजन को और हर रिलीजन के से बिलोंग करने वाले पर्सन को या सिटीजन को ये राइट है कि वो प्रैक्टिस कर सकता है, प्रोपोगेट कर सकता है अपने रिलीजन को और प्रोफेस कर सकता है, ठीक है। इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होने वाला है। इंडियन सेकुलरिज्म मेनली क्या इससे आर्टिकल 25 से क्या कर रहा है, इंडियन सेकुलरिज्म है जो हर रिलीजन को प्रमोट कर रहा है, ठीक है। सबको है जो ये वाला राइट दे रहा है, ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर रिलीजन को तो दे रहे हैं हम लोग राइट और दूसरे वाले को नहीं दे रहे हैं, ठीक है, सबको दिया जा रहा है। आर्टिकल 26 M4 मैनेज रिलीजियस अफेयर। मैनेज कैसे करोगे आप है जो पर्टिकुलर अपने रिलीजन का इंस्टीट्यूशन है वो एस्टेब्लिश कर सकते हो, और उसके जो पर्टिकुलर जो रिलीजियस अफेयर्स हैं वो उनको मैनेज भी कर सकते हो। आप है जो रिलीजन के जैसे फेस्टिवल है उनको ऑर्गेनाइज कर दिया, रिलीजन की कोई भी रैली वगैरह है, यात्रा वगैरह है वो कर ली, तो ये जो या फिर रिलीजन में जो भी कुछ मैटर हो रहा है तो वो भी आप है जो खुद से है जो सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि कई सारे लोग होते हैं ना जो रिलीजियस प्रीस्ट होते हैं, चाहे वो पुजारी या फिर वो मठ महंत हो गए हिंदू रिलीजन में, या फिर मुस्लिम रिलीजन में इमाम वगैरह हो गए, ठीक है, या क्रिश्चियन में है जो फादर हो गए, है ना। तो वो सारे लोग हैं जो अपने रिलीजियस मैटर में वो अपनी पर्टिकुलर अथॉरिटी को है जो एंजॉय कर सकते हैं, वो अपने रिलीजियस मैटर में सारे डिसीजन ले सकते हैं। ओके, बस कंडीशन ये है कि वो किसी को हार्म नहीं करने चाहिए, जो कि मैंने अभी लास्ट क्लास में ही बताया था कि स्टेट है जो तभी आपके रिलीजन में इंटरफेयर करेगा जब या तो आप इल प्रैक्टिस कर रहे होंगे या फिर आप किसी इंडिविजुअल को है जो हार्म कर रहे होंगे। उसके अलावा स्टेट आपके रिलीजन मैटर में नहीं आएगा, वो प्रिंसिपल डिस्टेंस बनाए रखेगा। 26 हो गया। ये है प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिलीजियस टैक्स, है ना, कि आप है जो ये टैक्स लगाए कभी कभी लगाए। अरे हिस्ट्री में पूछ रहा हूँ, हिस्टोरिकली में क्यों नहीं लगा, हिस्टोरिकली लगाए ना हम लोगों ने, लास्ट क्लास में देखा था कहाँ लगाया। हाँ, अकबर के टाइम ने तो अकबर ने तो हटाया था उससे, हाँ मुगल एरा में मुगल है ना उसमें अकबर ने हटाया था, औरंगजेब ने वापस ले आया था। उस टैक्स को बोलते थे जजिया टैक्स। जजिया टैक्स भी मैंने लास्ट क्लासेस में है जो एक्सप्लेन करा है। हाँ क्या, अच्छा, ओके, अच्छा, ठीक है। तो जो टैक्स है जो रिलीजियस टैक्स से है जो प्रोटेक्शन, जो रिलीजियस प्रैक्टिसेज है रिलीजियस है जो इंस्टीट्यूशन है उनके पर्टिकुलर है उस पर टैक्स नहीं लगेगा। किसी पर्सन पे इसलिए टैक्स नहीं लगाया जाएगा कि वो पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो कर रहा है। ओके, तो प्रोटेक्शन ये एक्चुअली प्रोटेक्शन है, ठीक है, प्रोटेक्शन फ्रॉम रिलीजियस टैक्स। ओके, एंड 28 है रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। ये तो बुक में वैसे ही लिखा हुआ ही है। इंस्ट्रक्शन कौन से वाले, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, यानी कि पर्सन को राइट है कि वो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन है जो ले सकता है इंस्टीट्यूशन से। पहली बात तो ये है। दूसरी बात है कि अंडर 28 है, इसमें मैं थोड़ा सा लिखवाऊंगा भी, ठीक है, कि अंडर आर्टिकल 28 तीन तरीके की इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ठीक है। हम लोगों ने देखा था आर्टिकल 26 जिसमें है जो हम लोगों ने क्या कर रहे थे, मैनेज कर रहे थे और इंस्टीट्यूशन भी एस्टेब्लिश कर रहे थे, इंस्टीट्यूशन भी एस्टेब्लिश कर रहे थे और उसका मैनेजमेंट कर रहे थे, है ना, आर्टिकल 26 में। और जो 28 है उसमें इंस्टीट्यूशन में क्या कर रहे हैं हम लोग, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन भी है जो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन है वो ले रहे हैं। तो जो ये इंस्ट्रक्शन लेंगे किसी इंस्टीट्यूट से लोगे, हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में ही है जो डिस्कस किया था, ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन के बीच में डिफरेंस बताओ क्या है। ओके, नहीं नहीं हो गया, ऑर्गेनाइज फॉर्म में है, इसके अलावा इंस्टीट्यूशन में बिहेवियर चेंज होता है, ठीक है, तो ये मेन डिफरेंस है। ऑर्गेनाइज्ड का मतलब हो गया कि और ऑर्गेनाइजेशन है वो पर्टिकुलर रूल्स एंड रेगुलेशन पे बेस्ड होता है, उसका एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव होता है। ये चीज इंस्टीट्यूशन में भी होती है, बट इंस्टीट्यूशन में क्या होता है, पर्टिकुलरली जो फोकस होता है वो बिहेवियरल चेंज में होता है।
यानी कि एजुकेशन प्रोवाइड हो रही है, या फिर कोई आपको पर्टिकुलर किसी तरीके से आपके जो बिहेवियर पैटर्न को चेंज किया जा रहा है, जैसे साइकोलॉजिकल इंस्टीट्यूशन हो गया, तो इसमें आपको पर्टिकुलर आपके जो भी बिहेवियर इमोशंस हैं उनको चेंज किया जा रहा है। तो ये सारा इंस्टीट्यूशन का पार्ट होता है। ठीक है, तो इंस्टीट्यूशन से ही तो आप है ना इंस्ट्रक्शन लोगे। तो जो आर्टिकल 28 में जो इंस्ट्रक्शन इंस्टीट्यूशन है वो है जो तीन तरीके के हैं। तीन तरीके के हैं। एक तो है स्टेट ऑन्ड, ये थोड़ा मिटा दूं क्या मैं। तो आर्टिकल 28 में तीन तरीके के इंस्टीट्यूशन होते हैं। पहला है स्टेट ऑन, मतलब जो सारी ओनरशिप है वो स्टेट की है। ये जो स्टेट ऑन्ड जो है, जिसमें ओनरशिप जो स्टेट की है, गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूशन है, उसमें आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं ले सकते। ठीक है, इसको मैं मेंशन राइट डाउन करवा दूंगा, जस्ट अभी समझो। ठीक है, पहला जो है उसमें हम लोग है जो क्या नहीं कर सकते, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं ले सकते। वहाँ पे कोई भी आपका जो पर्टिकुलर गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो गया, गवर्नमेंट स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, उसमें है जो स्टेट है जो किसी पर्टिकुलर रिलीजन को है जो प्रमोट नहीं करेगा, उसको है जो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन उसमें नहीं दिए जाएंगे। ठीक है, स्टेट ओन्ड में। दूसरा है कि स्टेट है जो एडमिनिस्ट्रेटर कर रहा है, एडमिनिस्टर कर रहा है, लेकिन जो उसका जो इंस्टीट्यूशन है वो पर्टिकुलरली किसी चैरिटी या फिर कम्युनिटी ने बनाया है। कम्युनिटी ने बनाया है, या तो चैरिटेबल ट्रस्ट ने बनाया है, या कम्युनिटी ने पर्टिकुलर उसको बनाया है। ठीक है, वो है इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन में रिलीजियस इंस्ट्रक्शन है जो दिए भी जा सकते हैं, और इवन किसी को फोर्स भी किया जा सकता है। किसी को फोर्स मतलब कंपलसरी है, जो अगर है ना कोई इंस्टीट्यूशन है जैसे मदरसा, इसका जो एग्जांपल हो गया वो हो गया मदरसा। तो मदरसा में अगर वो स्टेट एडमिनिस्ट्रेड है, लेकिन उसका जो एस्टेब्लिशमेंट है वो पर्टिकुलर कम्युनिटी ने किया है, तो वो वाला जो इंस्टीट्यूट होता है वहां पे रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, वो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दिए भी जाएंगे, और इवन कंपलसरी भी किया जाएगा कि अगर आप कोई भी पर्सन मदरसा में आ रहा है तो उसको है जो मुस्लिम जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस है उसके बारे में बताया जाएगा, कंपलसरी। ठीक है, अगर आपको नहीं सुनना है तो आप ना जाएं। ठीक है, तो ये सेकंड वाला है। तीसरा वाला क्या है? तीसरा वाला है कि स्टेट का फंड मिल रहा है उसमें। इसमें सिर्फ स्टेट फंड नहीं कर रहा है, इसमें सिर्फ स्टेट एडमिनिस्ट्रेट कर रहा है। फंड है जो ये कम्युनिटी प्रोवाइड कर रही है। इसमें है जो स्टेट फंडेड है, स्टेट एडेड है, फंड या एड बोल सकते हैं इसको। ठीक है, स्टेट है जो फंड प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, ऐसा जो इंस्टीट्यूशन है उसमें रिलीजियस इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड तो करवा सकते हैं, पर कंपलसरी नहीं है। ठीक है, इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में रिलीजियस इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं, पर उनको इंस्ट्रक्शंस को लेना कंपलसरी नहीं है। ये तीन तरीके के जो इंस्टीट्यूशन है वो पर्टिकुलरली आर्टिकल 28 वाले हैं। ठीक है, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन लिखा तो है, इंस्ट्रक्शन रिलीजियस वाले। रिलीजन, हाँ हाँ, रिलीजन की जो जो भी टीचिंग हो गई, कस्टम्स हो गए, ट्रेडिशंस हो गए, रूल्स हो गए, जो भी रिलीजन्स वाले हो गए। जैसे सपोज करो कि मुस्लिम रिलीजन की बात करें तो नमाज पढ़ना हो गया, तो वो नमाज पढ़ना आपको सिखाया जाएगा, अगर वो फर्स्ट टाइप का है तो। सॉरी, इस फर्स्ट तो स्टेट ओन हो गया, सेकंड है अगर, तो वो आपको करवाया जाएगा। स्टेट ओन्ड में कुछ नहीं होगा। स्टेट ओन्ड जो है ना, ओन का मतलब कि स्टेट का ही है, उसमें बिल्डिंग भी स्टेट की है, एडमिनिस्ट्रेशन भी स्टेट का है, और फंड है वो तो स्टेट का ही है। उसमें है जो कोई रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, अगर प्रोवाइड किया जा रहा है तो आप है जो इस अंडर आर्टिकल 28 आप है जो कंप्लेन कर सकते हो कि मेरा जो राइट टू रिलीजन है वो ब्रीच हो रहा है। ठीक है, इसको मैं नोट डाउन करवा दूंगा। ठीक है, आपको समझ में तो आ गया ना, डिफरेंस समझ में आ गया। ठीक है, चलो नोट डाउन करिए। फ्रीडम ऑफ रिलीजन, या फिर अगर पूरी लैंग्वेज में लिखना है तो लिखो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हाँ फ्रीडम ऑफ रिलीजन लिख देना, इसके आगे लिख लो भले। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स प्रोवाइड्स एवरी सिटीजन फ्रीडम ऑफ रिलीजन टू एक्सप्रेस इंडियन इंडियन सेकुलरिज्म, टू एक्सप्रेस
इंडियन सेकुलरिज्म और सेकुलर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडिया, टू एक्सप्रेस सेकुलर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इंडिया या इंडियन स्टेट। ठीक है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, दूसरा पॉइंट है फ्रीडम ऑफ रिलीजन मेंशन्ड इन पार्ट थ्री, पार्ट थ्री, पार्ट थ्री, थ्री थ्री, पार्ट थ्री ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट थ्री ऑफ इंडियन रहने दो कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट थ्री ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 25 to 28। ठीक है। सो आर्टिकल 25, जस्ट ब्रीफ में लिख लो आर्टिकल 25। आर्टिकल 25, it provides freedom of religion to every citizen such that such that an individual या a citizen एक ही बात है, an individual can follow religious practices of any religion propagate particular religion, कोमा लगा के propagate particular religion and also profess the same। अभी प्रैक्टिस और प्रोपोगेट और प्रोफेस को तो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है ना, मैंने कर लिया वैसे। एंड आल्सो प्रोफेस द सेम मतलब रिलीजन, आल्सो प्रोफेस द रिलीजन। ठीक है। ठीक है। प्रैक्टिस और प्रोपोगेट और प्रोफेस में डिफरेंस क्लियर है। ठीक है। क्या हो गया प्रैक्टिस का मतलब? प्रैक्टिस का मतलब क्या हो गया? रिलीजन प्रैक्टिस। जो रिलीजन की जो भी है ना पर्टिकुलर जो कस्टम्स हैं, रिचुअल्स हैं, उनको है जो फॉलो कर सकते हो, उनको प्रैक्टिस कर सकते हो, उनको पर्टिकुलर। हाँ हाँ, जो भी है कर सकते हो, वर्शिप कर सकते हो, कुछ भी जो रिलीजन के जो रिचुअल्स हैं, जैसे हिंदू रिलीजन के यज्ञ वगैरह हो गए, हवन वगैरह। ठीक है। डीटी वर्शिप हो गया, तो वो सारी चीज़ भी कर सकते हो, या फिर मुस्लिम्स के नमाज वगैरह पढ़ना हो गया, तो वो भी है जो कर सकते हो। तो वो की प्रैक्टिस। ठीक है। प्रोपेगेट में हो गया कि आप है जो पर्टिकुलर है जो किसी पर्सन को है जो अपने रिलीजन में कन्वर्ट कर सकते हो। प्रोफेस का मतलब हो गया कि आप अपने रिलीजन के बारे में दूसरे को बता सकते हो। ठीक है। प्रचार कर सकते हो, उसको स्प्रेड कर सकते हो, और इसको कन्वर्ट भी कर सकते हो ऑब्वियसली। भाई आप, हाँ, प्रोफेस का मतलब है एक्सप्लेन करना, एक्सप्लेन करना। प्रोफेस, प्रोफेस को हाँ एक्सेप्ट भी करते हैं। प्रोफेस का मतलब एक्सेप्ट करना भी हो गया और एक्सप्लेन करना भी हो गया। एक्सप्लेन, जब प्रोफेस मतलब एक्सप्लेन करोगे, आप है जो एक्सप्लेन करोगे तभी तो कोई कन्वर्ट होगा ना, प्रोपोगेट तभी तो होगा। अनलेस की हिस्टोरिकली आप है जो तलवार लगा के कर रहे हो तो बात अलग है, अदरवाइज है ना। तो ये आप लोगों ने 25 देखा, 26, आर्टिकल 26, इसमें पॉइंट में लिख लेना
कि अंडर दिस आर्टिकल three types of right provided, three types of three rights are provided, या टाइप्स हटा दो, three rights are provided. पहला, one can establish institution, religious institution to preach any religion. ठीक है, पहले में हो गया कि क्या है, इंस्टीट्यूशन को एस्टेब्लिश कर सकते हो. दूसरा है वन कैन मैनेज ऑन रिलीजियस अफेयर्स. ऑन OWN, खुद के रिलीजन के अफेयर को मैनेज कर सकता है. ठीक है, दूसरा हो गया. तीसरा है राइट टू प्रॉपर्टी. इसमें लिख लो यस कि इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश करने के लिए, टू एस्टेब्लिश रिलीजियस इंस्टीट्यूशन वन कैन acquire property and in case anyone including state take or acquire. ठीक है, acquire that property then must be compensated. ये compensation है वो मिलेगा. compensation क्या लिखा है आपने, compensated या फिर प्रोवाइडेड कंपनसेशन. ठीक है, यानी कि क्या है, तीसरे में क्या हो गया कि आप जो इंस्टीट्यूशन है उसको एस्टेब्लिश करने के लिए प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकते हो, फाइनेंस ले सकते हो, लैंड ले सकते हो, उसमें अपना एक इंस्टीट्यूशन है रिलीजियस इंस्टीट्यूशन वो एस्टेब्लिश कर सकते हो. ठीक है, और जो पर्टिकुलरली अगर बाई चांस आप उसको इवन सेल आउट कर सकते हो, या फिर अगर स्टेट उसको एक्वायर कर रहा है तो आप है जो पर्टिकुलर कंपनसेशन है वो आपको प्रोवाइड होगा. ठीक है, जो ये 26 है, लेकिन इसका जो कंपनसेशन है ना वो है जो इंस्टीट्यूशन के फॉर्म में ही मिलेगा. ये लिख लो क्योंकि आगे आपको कंफ्यूजन होने वाला है. इन दिस पहले लिख लो दैट कंपनसेशन will be provided in same manner in which religious institution made and not were made and not in monetary term and not just monetary term. ये आपको वो जो स्टेटमेंट है वैसे आपने को मैंने लिखाया नहीं है, वो थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना. सेल नहीं कर सकता है, बट है जो स्टेट है जो आपको जैसे कि टेम्पल है और उसको है जो पर्टिकुलर टेम्पल को ग्रैब कर लिया है तो आपको है जो फिर वो टेम्पल ही प्रोवाइड करवाएगा. ऐसा नहीं होगा कि पैसे प्रोवाइड करेगा, नहीं. इसमें है जो मॉनेटरी टर्म में आपको कंपनसेशन नहीं मिलेगा, कंपनसेशन मिलेगा तो आपको उसी तरीके से ही मिलेगा. और टेम्पल का एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि जो आर्टिकल 26 है उसमें है जो ये जो आर्टिकल 26 है वो हर तरीके के रिलीजन के लिए एप्लीकेबल है.
ये जो पर्टिकुलर जो 26 आर्टिकल है वो आपका है जो कंफ्यूज करेगा आर्टिकल 30 से, जो हम लोग आगे देखेंगे। जो रिलीजियस माइनॉरिटीज का है उसमें जो आर्टिकल 30 है, तो आर्टिकल 30 से है जो इसका कंफ्यूजन होगा वो हम लोग उसी टाइम पे देखेंगे। ठीक है, तो आर्टिकल 26 हो गया, आर्टिकल 27। ठीक है, इसमें जस्ट ये लिख दो, प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिलीजियस टैक्स। ठीक है, ये तो सिंपल है, इसमें कोई राइट डाउन करने की जरूरत नहीं है। अंडर फिर आर्टिकल 28, इट प्रोवाइड्स फ्रीडम ऑफ रिलीजन टू गिव religious instructions in public places or institutions. Under this article, there are three types of institutions categorized. मतलब तीन तरीके के इंस्टीट्यूशन की कैटेगरी है। फर्स्ट, स्टेट ऑन इंस्टीट्यूशन। In this type of institution, religious instructions are prohibited. ठीक है, स्टेट ऑन्ड का मतलब हो गया कि स्टेट का ही एडमिनिस्ट्रेशन है, लैंड भी स्टेट की है, फंडिंग भी स्टेट नहीं प्रोवाइड कर रही, सारा कुछ स्टेट का है, ओनरशिप है जो स्टेट की है। ठीक है, तो उसमें है जो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं प्रोवाइड किए जाएंगे। हाँ, स्टेट, क्योंकि स्टेट ने तो प्रिंसिपल डिस्टेंस रखी हुई है ना, ऐसा इसलिए ना कि प्रिंसिपल जो हम लोगों ने जो प्रिंसिपल स्टैंड है जो स्टेट के क्या देखे हैं, स्टेट के हम लोगों ने प्रिंसिपल स्टैंड क्या देखे हुए हैं, वो देखे हुए हैं ना कि किसी भी रिलीजन से कंसर्न नहीं करेगा, एसोसिएट नहीं करेगा। अगर भाई स्टेट के इंस्टीट्यूशन में आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर रहे हो स्टेट के पैसे से, स्टेट की बिल्डिंग में, तो इसका मतलब तो ये हो गया ना कि स्टेट है जो कंसर्न है किसी रिलीजन के लिए। इसका मतलब तो यही हुआ ना, तो ये तो हमारा प्रिंसिपल है नहीं इंडियन सेकुलरिज्म का। वो इंडियन सेकुलरिज्म का प्रिंसिपल क्या है कि वो तो है जो स्टेट किसी रिलीजन को के बारे में कंसर्न होगा नहीं, किसी रिलीजन से एसोसिएट होगा नहीं, तो इस वजह से नहीं प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, सेकंड पॉइंट, सेकंड इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन institution which is established by community, of, yeah sorry, by religious community, हाँ, या community of certain religion, जो भी लिखना चाहो, by religious community और charitable trust
और बाई एनजीओ, ओके। इसमें भी फिर दो कैटेगरी है, ठीक है। इसमें दो कैटेगरी हैं कि या तो है जो वो पर्टिकुलर जो एस्टेब्लिश किया है उसका एडमिनिस्ट्रेशन भी वही कर रहे हैं, कम्युनिटी कर रही है, और या फिर एडमिनिस्ट्रेशन है जो स्टेट को दिया हुआ है। दो तरीके के हो गए, यही होगा ना भाई। आपने एस्टेब्लिश कर दिया, ठीक है, आपने है जो इंस्टीट्यूट को एस्टेब्लिश तो कर दिया, हाँ। तो आपने क्या कर दिया ना, एक इंस्टीट्यूट को एस्टेब्लिश तो कर दिया है, पर इसको एडमिनिस्टर तो खुद भी कर सकते हो ना। एडमिनिस्टर है, या तो सेल्फ कर लो या फिर गवर्नमेंट को प्रोवाइड कर दो, ये तो दो ही तो ऑप्शन है। एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन इसका या तो सेल्फ कर लो और या फिर गवर्नमेंट। एस्टेब्लिश आपने कर दिया खुद से, ये तो आपने सेल्फ एस्टेब्लिश कर दिया, ठीक है। तो इसको एडमिनिस्ट्रेशन वाइज खुद कर रहे हो या गवर्नमेंट कर रही है, फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। इस वजह से दो पॉइंट्स मैंने यहाँ पे नहीं लिखवाए थे कि, सो इसमें लिख लो, इट कैन बी एडमिनिस्टर्ड ऑन देयर ओन और बाय द गवर्नमेंट, ऑन देयर ओन और बाय द गवर्नमेंट। दोनों केसेस में, दोनों केसेस में क्या होगा, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन है जो प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेट ऑन बाय ऑन और बाय द गवर्नमेंट इन दीज इंस्टीट्यूशंस, in these institutions, religious instructions are to be provided, can be provided, and there can be compulsion to get religious instructions। मतलब जो भी आएगा ना उस इंस्टीट्यूट में, तो उसको है जो कंपलसरी है जो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन अगर वहां पे हो रहा है तो कंपलसरी अटेंड भी करना पड़ सकता है, ओके। जैसे फॉर एग्जांपल लिख लो, लाइक मदरसा, एग्जांपल मदरसा, ठीक है। अगर मदरसा में कोई और दूसरी कम्युनिटी का भी अगर पर्सन जाएगा ना, तो उसको, या कोई रिलीजन का जाएगा तो उसको है जो रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस है जो लेने पड़ेंगे, अटेंड करने पड़ेंगे, प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। अगर गुरुद्वारा है जो, हाँ, उनका है पर्टिकुलर, उनके उनके द्वारा ओन है या फिर एस्टेब्लिश है और उनके द्वारा ओन है और उन्हीं के द्वारा एडमिनिस्टर्ड हो रहा है, गवर्नमेंट के द्वारा एडमिनिस्टर्ड हो रहा है, तो डेफिनेटली आपको करना पड़ेगा। या फिर इवन गुरुकुल है तो इसमें भी आपको है जो वो अटेंड करने पड़ेंगे, देर इज कंपल्सरी, ठीक है। थर्ड इंस्टीट्यूशन, institutions which are recognized by state and also funded, fund funded by state, ठीक है, and funded by the state। These institutions are established by or owned by religious community,
ठीक है, आपने ये लिख लिया। तो उसमें क्या होगा, पर्टिकुलर ऑन्ड बाय रिलीजियस कम्युनिटी इन इन दीज इंस्टीट्यूशंस, इन दीज रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस, क्या लिख लिया, कैन बी प्रोवाइडेड बाय बट देर इज नो कंपल्शन टू अटेंड, टू अटेंड रिलीजियस इंस्ट्रक्शन को अटेंड करने की जरूरत नहीं है। अब ये सारी जो लैंग्वेज अगर आपको नहीं पढ़नी हो तो ये टेबल बना लो फ्यूचर रिवीजन के लिए। अंडर आर्टिकल 28 दिख रहा है ना सही से? ठीक है, तो क्या है, अगर ये ऑनरशिप है, इसको ये ऑनरशिप, ऑनरशिप, ठीक है, अगर ये गवर्नमेंट की है, अगर वैसे ओनरशिप गवर्नमेंट की होती है तो एडमिनिस्ट्रेटर एडमिनिस्ट्रेशन है जो गवर्नमेंट ही करती है, ठीक है। एस्टेब्लिश भी गवर्नमेंट नहीं करी होगी, अगर एस्टेब्लिश नहीं भी करी होगी तो किसी ने एस्टेब्लिश करी होगी, गवर्नमेंट ने उसको एक्वायर कर लिया होगा, कुछ भी, मतलब कोई भी केस हो, अगर ओनरशिप गवर्नमेंट की है तो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन है जो नहीं दिए जाएंगे। और नहीं, जब रिलीज तो कंपल्सन तो बिल्कुल है ही नहीं, वैसे भी जब दे ही नहीं रहे तो कंपल्सन किस चीज का, ठीक है। यही हमारा हमारा पहला पॉइंट था, पहला इंस्टीट्यूशन ऐसा ही था। दूसरा है कि जो ऑनरशिप है वो रिलीजियस कम्युनिटी की है, ऑनरशिप है ना रिलीजन की, कर दो। रिलीजन की मतलब कि किसी भी रिलीजन के पर्सन की हो गई, कम्युनिटी की हो गई, किसी की भी हो गई, पर्सन हो गया या कम्युनिटी हो गई, कोई भी हो गया। और दूसरा तीसरा भी यही है कि रिलीजन की किसी पर्सन की हो गई या कम्युनिटी की हो गई, ऑनरशिप, भाई गवर्नमेंट की ऑनरशिप होगी, ऑनर तो कुछ देखना ही नहीं है, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन फॉलो होना ही नहीं है। अब दो केस हो सकते हैं कि, इसके अलावा दो केस और हो सकते हैं कि ऑनरशिप है जो रिलीजन की हो, एक में तो इसको ऑब्वियस सी बात है, या तो एस्टेब्लिश है ना किसी ने किया होगा, मतलब गवर्नमेंट ने किया होगा या रिलीजियस कम्युनिटी ने किया होगा, किसी ने भी किया हो। और अगर ऑनरशिप है जो रिलीजियस कम्युनिटी की है, यानी खरीद लिया है, जो भी कुछ कर लिया है, और एडमिनिस्ट्रेशन है जो कौन कर रहा है, गवर्नमेंट कर रही है, एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट कर रही है या रिलीजियस कम्युनिटी कर रही है, कोई भी कर रही है, कोई भी कर रहा हो, ऑनरशिप इसकी है, रिलीजन की है। अच्छा सॉरी, वन सेकेंड, इसमें एडमिनिस्ट्रेशन की जगह वो लिख लो, फंडेड लिख लो। एडमिन है ना, एडमिन से तो कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा।
फंडेड। ठीक है, तो जो फंड है वो गवर्नमेंट नहीं प्रोवाइड कर रही है, रिलीजियस कम्युनिटी प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, ये है जो ओनरशिप रिलीजन का है, फंड भी रिलीजियस कम्युनिटी कर रही है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन कोई भी कर रहा हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड किए जाएंगे और वो कंपल्शन भी उनको होगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट है, रिलीजियस कम्युनिटी ने ऑन किया है, एस्टेब्लिश किया है, किसी ने भी किया हो, फंड है जो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, इसको बोलेंगे एडेड इंस्टीट्यूशन, एडेड इंस्टीट्यूट। ठीक है, प्राइवेट पर्सन कोई भी, रिलीजन प्राइवेट पर्सन कोई भी हो। ठीक है, सिर्फ गवर्नमेंट नहीं होनी चाहिए। सेकंड केस में, थर्ड केस में है गवर्नमेंट है जो वो प्रोवाइड कर रही है, एड प्रोवाइड कर रही है, फंड प्रोवाइड कर रही है। उसमें क्या होगा, ठीक है, तो आपको एक क्विक रिवीजन हो जाएगा इस टेबल से। अब इसके आगे लिखो एग्जाम्पल, हाँ लिख लो एग्जाम्पल्स, इधर ही कर लेते हैं कोई एग्जाम्पल। हाँ, किसका एग्जाम्पल चाहिए आपको? जैसे ये वाला तो है, मदरसा हो गया। ठीक है, मदरसा हो गया, गुरुकुल में अगर ऐसा हो रहा होगा तो देख लेना। ठीक है, मदरसा गुरुकुल वगैरह। और ऐसा कि जो गवर्नमेंट में इंस्टीट्यूशन ऐड हो रहे हो, और ऐसे तो बहुत सारे हैं। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेंट स्टीफन कॉलेज, कॉन्वेंट स्कूल्स, अगर कॉन्वेंट स्कूल में कर रहे हैं, ये सारे कॉन्वेंट स्कूल तो सारे इसमें आ जाएंगे, सेकंड वाले में आ जाएंगे कॉन्वेंट स्कूल। कॉन्वेंट स्कूल सेकंड वाले में है। ठीक है, क्या कॉन्वेंट स्कूल्स में प्रेयर्स में करवाते तो हैं, वो पता नहीं कोई पर्टिकुलर उनकी जो क्रिश्चियन की प्रेयर्स वगैरह होती तो है। तो हाँ, कंपल्सन नहीं। आप जो कॉन्वेंट स्कूल है ना, जो क्रिश्चियन मिशनरीज वाला जो होता है, तो उसमें है जो सारे स्टूडेंट को है जो क्रिश्चियंस के वो जो पर्टिकुलर रिलीजन के बारे में वो बताते तो हैं वहाँ पे, प्रेयर्स वगैरह वो करवाते तो हैं। हाँ, कॉन्वेंट स्कूल तो भाई कॉन्वेंट स्कूल को अगर गवर्नमेंट ने ऐड मिल रही होगी किसी को, तो वो तो नहीं करवाएगा, वो तो नहीं करवा सकता कंपल्सन, अगर ऐड होगी तो। और ये जो जितने भी ये जो यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस वगैरह है ना, सेंट जेवियर वगैरह, जो ये कॉलेजेस हैं, ठीक है, टीएमए पाई, क्या, हाँ भाई, अगर जिस कॉन्वेंट स्कूल में है जो गवर्नमेंट की फंडिंग हो रही है, वो तो नीचे आएगा, और जिसमें नहीं हो रही है वो तो ऊपर आएगा ना। कॉन्वेंट, गवर्नमेंट नहीं, कॉन्वेंट। हाँ, प्राइवेट क्यों नहीं, क्रिश्चियन मिशनरीज का अपना नहीं हो सकता? तो सारा ट्रस्ट से ही तो चलता है, मैं वही तो बोल रहा हूँ। जिसमें इसमें भी दो तरीके के होंगे ना भाई, ऐसा कोई तो स्कूल होगा ना जिसमें गवर्नमेंट से फंडिंग नहीं आ रही होगी, या सारे में आ रही है? ये चलो एक मिनट, आप खुद किए हैं वो पर्टिकुलर, उसमें आ रही होगी गवर्नमेंट की फंडिंग। तो मैं वही कह रहा हूँ ना, तो भाई आपके साइड में आ रहा होगा। चलो इसको या तो ऐसे लिख लो, क्रिश्चियन स्कूल, क्रिश्चियन स्कूल, क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल लिख लो इसको। ठीक है, मिश, मिशनरी स्कूल लिख लो ना, कॉन्वेंट स्कूल मिशनरी के ही तो होते हैं। एक बात बताओ आप, जो कॉन्वेंट स्कूल होता है उसका जो प्रिंसिपल होता है वो क्या कैसे कपड़े पहन के बैठा होता है?
कैथोलिक फॉर्म में होता है ना, तो वो प्रैक्टिस कर तो रहा है इंस्टीट्यूशन में, और कैसे होगा? क्या आप उसको गुड मॉर्निंग, क्या आप उसको फादर एड्रेस करते हो? तो फिर तो वो ये फादर एड्रेस करना इट सेल्फ रिचुअल, क्रिश्चियन रिचुअल, आप प्रिंसिपल क्यों नहीं एड्रेस कर रहे हो उसको? अगर मैं वही कह रहा हूँ, कंपल्शन मतलब उसमें फॉलो हो रहा है ना, तो बस। कंपल्शन का मतलब क्या समझते हो आप? कंपल्शन मतलब ये थोड़ा है आपको जबरदस्ती ऐसे पीट के मार के ऐसे उठा बैठा दिया जाएगा, वैसा थोड़ा है। दैट यस कंपल्शन मतलब कि दैट वो प्रैक्टिस चल रही है वहाँ पे, आप उसके अगेंस्ट में है जो नहीं कर सकते। आपको करना है तो करो, नहीं आपको पर्टिकुलर प्रेयर जैसे है कॉन्वेंट स्कूल में जो प्रेयर्स होती है, कौन सी प्रेयर्स होती है? कॉन्वेंट में कोई पढ़ा है? नहीं, मैं तो नहीं पढ़ा हूँ, हाँ। कॉन्वेंट में डीएवी, वो डीएवी तो वो आर्य समाज का हो गया ना, वो तो करवाएगा ही, करवाता है ना डीएवी वाला। तो वो डीएवी भी कहाँ पे आ रहा है? सेकंड में आ रहा है। ठीक है, अगर है जो आपकी जो प्रेयर करवाई जा रही है ना, जो डीएवी में अगर वो जो हिंदू प्रेयर करवाई जा रही है, तो दैट मीन्स कि डीएवी भी वहाँ पे फॉल कर रहा है। हाँ, वो तो एक जनरल है, उसको तो हम लोग उसमें नहीं काउंट ही नहीं करते हैं, मतलब इंडिया में नहीं करते हैं। कॉन्वेंट स्कूल में आप पढ़े हो? कॉन्वेंट में तो, अरे तो मैं बता तो रहा हूँ भाई, कॉन्वेंट स्कूल में होता है ऐसा, मैं बता रहा हूँ। कॉन्वेंट स्कूल में है जो ऐसे क्रिश्चियन प्रेयर्स वगैरह होती है, सो सारे जो रिलीजन के रिगार्डलेस ऑफ रिलीजन वो अटेंड करते हैं। आपको अगर ये नहीं आ रहा तो मिशनरी स्कूल लिख लो, मिशनरी स्कूल लिख लो। आप ठीक है, मिशनरी स्कूल, क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल, ठीक है, कॉन्वेंट में, ठीक है, ठीक है। चलो ठीक है, समझ में आया एग्जांपल्स वगैरह। मेन चीज है कि किसमें होता है किसमें नहीं होता, ये मेन चीज नहीं है, मेन चीज ये है कि ये पर्टिकुलर उसका क्राइटेरिया क्या है। इसके इतने लिखवाए तो हैं, पर हाँ, सेंट जेवियर कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो कॉलेजेस हैं, भाई ये कॉलेज का नाम ही आपने ऐसा रखा हुआ है, वैसे ही वो दैट मीन्स, लेकिन इसमें क्या है, इंस्टीट्यूशन में रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दिए जा सकते हैं पर कोई कंपल्सन नहीं है। वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो गई, हाँ, ठीक है। अगर उसकी गवर्नमेंट फंडिंग मिल रही है ना उसको, तो कहाँ जब उसी में आएगा ना, यानी वहाँ पे इंस्ट्रक्शन होते हैं पर कंपल्सन नहीं है। अब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को फंडिंग नहीं मिल रही है? चलें आगे चलें। ओके, तो ये आपका आर्टिकल 28 हो गया था। उसके बाद में है जो हम लोग देखते हैं आगे, आर्टिकल 29 और 30 टू, हाँ लिखो, इसके आगे लिखो पॉइंट, टू एक्सप्रेस, नहीं नहीं, पहले पॉइंट में जो लिख रहा हूँ वो लिखो, टू एक्सप्रेस सेकुलरिज्म एंड प्रोटेक्ट माइनॉरिटीज विच आर रिलीजियस और लिंग्विस्टिक प्रोवाइडेड स्पेशल राइट्स इन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 29 एंड 30। तो एक्चुअली जो 29 और 30 है, वो तो बेसिक वो प्रोवाइड ही माइनॉरिटी के लिए किए गए हैं, प्रोटेक्ट करने के लिए। ये जो 25 से 28 है वो सबके लिए हैं, पर 28, 29 और 30 हैं वो सिर्फ माइनॉरिटीज के लिए हैं। यानी माइनॉरिटी को इसलिए मैंने बोला इसको क्या है, स्पेशल राइट प्रोवाइड किए गए हैं। ठीक है, इसमें एक पॉइंट और लिख दे, लिख लो, दीज राइट्स
are provided to give to give are provided to give special protection to minorities from majoritarianism. From majoritarianism. Tarianism. ठीक है, क्या हुआ? मेजोरिटेरियनिज्म। ठीक है, मेजोरिटेरियनिज्म का मतलब अगर नहीं आता है, वैसे क्या वर्ड से पता चल रहा है क्या होता है, क्या है? मतलब जो मेजोरिटी है वो पर्टिकुलरली अपने इंटरेस्ट को तो फॉलो करती है और दूसरे के को इग्नोर कर देती है, इग्नोर्स अदर्स इंटरेस्ट। ये हम लोगों ने देखा था कि हम लोग अदर्स के इंटरेस्ट है जो कब इग्नोर करते हैं, कम्युनलिज्म में है ना। तो मेजोरिटेरियनिज्म में क्या होता है कि जो मेजोरिटी है दूसरे के जो भी है उसको है जो इग्नोर कर देती है। अब वो इंटरेस्ट किसी भी तरीके के हो सकते हैं, ठीक है, वो पॉलिटिकल इंटरेस्ट हो सकते हैं, रिलीजियस इंटरेस्ट हो सकते हैं, इकोनॉमिक इंटरेस्ट हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर्टिकुलर इस कॉन्टेक्स्ट में किसकी बात कर रहे हैं, रिलीजियस इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये नोट डाउन कर लो। एंड आर्टिकल 29, ठीक है, इसकी कोई खास ट्रिक नहीं है, ऐसे ही ये ऐसे दो वर्ड याद ले लो। ये हाँ, इनको मैंने बोला ना, इस पे माइनॉरिटी राइट्स ही है, इनका नाम ही माइनॉरिटी राइट्स है। माइनॉरिटी राइट्स, माइनॉरिटी और या फिर ये माइनॉरिटी कल्चरल राइट्स, क्या? हाँ, मैं कर रहा हूँ, मेंशन कर रहा हूँ। ये तो हो गया इंटरेस्ट, ये हो गया एजुकेशन। ठीक है, 29 में कुछ ही नहीं है, बस इसमें बस यही है कि देर आर माइनॉरिटीज रिकॉग्नाइज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन और गवर्नमेंट एंड दोज इंटरेस्ट आर प्रोटेक्टेड अंडर अंडर आर्टिकल 29, बस इतना ही है। मेन जो आर्टिकल है आपका है वो 30। ठीक है, 29 में लिख लो ये, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी। इसमें है 30 में, आर्टिकल 30 प्रोवाइड्स, आर्टिकल 30 प्रोवाइड्स right to minorities to minorities to establish education institution, education institution, to establish education institution for protecting their culture। कल्चर में फिर रिलीजन और लैंग्वेज दोनों आ गया। ठीक है, अब आप सोच रहे होगे कि 26 में भी तो हम लोगों ने इंस्टीट्यूशन किए थे, इंस्ट्रक्शंस वगैरह,
इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश किया था ना, मैनेज अफेयर में 26 किया था, रिलीजियस थे, तो ये भी तो माइनॉरिटी, माइनॉरिटी में रिलीजियस माइनॉरिटी तो है ना। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, आपको तो आइडिया है ना, वो जनरल है, हाँ मैं वही कह रहा हूँ, है ना, तो आपको डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। जो आर्टिकल 26 है ना वो सबके लिए है, पर ये जो पर्टिकुलर ये जो 30 वाला है वो सिर्फ माइनॉरिटीज के लिए है। ठीक है, रिलीजियस माइनॉरिटी हो सकती है, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज हो सकती है। लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी का मतलब ऐसी लैंग्वेजेस जो है जो काफी कम है जो यूज में आ रही है। ठीक है, जैसे संस्कृत है वो भी आजकल कम यूज में आ रही है, तो संस्कृत लैंग्वेज के भी है जो आप एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ओपन कर सकते हैं। क्या? हाँ, चला जाएगा क्या, चला जा चुका है, कहाँ हो रहा है। हम्म, हाँ, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन है पर्टिकुलर जो भी है जो स्टेट है, वो टाइम टू टाइम माइनॉरिटी लिस्ट है जो अपडेट करते हैं। ठीक है, तो एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, इसमें क्या होता है, इसमें भी है जो आपने लिख लिया ना, 30 लिख लिया आर्टिकल, तो अगर इसमें लिख लो कि इसमें भी है जो राइट टू प्रॉपर्टी प्रोवाइड किया जाता है टू एस्टेब्लिश, राइट टू प्रॉपर्टी टू एस्टेब्लिश, हाँ, राइट टू प्रॉपर्टी टू एस्टेब्लिश एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, जो सेम लैंग्वेज थी आर्टिकल 26 में जो थी, राइट, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एंड इफ एक्वायर्ड and if acquired by others, if acquired by others, then must be compensated. तो ये जो कंपनसेशन है, आपने आर्टिकल 26 में देखा था कि वो सेम काइंड का था, लेकिन यहाँ पे है जो मॉनेटरी है जो कंपनसेशन भी दे सकते हैं। ठीक है, मॉनेटरी कंपनसेशन मनी भी है जो दिया जा सकता है 30 में, 26 में नहीं, क्योंकि वो है जो पर्टिकुलर रिलीजियस का था। ठीक है, ये एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है। हाँ, हाँ लिखो ना, कैन बी, कैन बी। वैसे है जो स्टेट है जो पर्टिकुलर वो है बना के क्यों देगी, ऑब्वियसली मनी देगी ना, वो मनी ज्यादा इजी रहेगा। ओके, तो ये आपका है जो माइनॉरिटी के जो राइट्स थे वो हो गए। तो इसमें लिख सकते हो, एक कंक्लूजन लिख सकते हो कि दैट, कंक्लूजन लिख लो कि इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, इन वेरियस आर्टिकल्स, सेकुलरिज्म हैज बीन expressed, has been expressed such that, such that constitution has provided equality, या फिर लिखो ensures, provided की जगह लिखो ensures, such that constitution ensures equality and freedom for every religion, even minorities are provided स्पेशल प्रोटेक्शन। ठीक है, बस प्रोवाइड स्पेशल प्रोटेक्शन। ठीक है, तो ये हम लोग देख सकते हैं कि जो इंडियन सेकुलरिज्म है वो हम लोग जो प्रिंसिपल स्टैंड हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में भी है जो शो होते हैं, क्योंकि हम लोगों ने जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के या इंडियन सेकुलरिज्म के जो प्रिंसिपल स्टैंड देखे थे जिसमें इक्वालिटी और जो फ्रीडम है वो मेन कंपोनेंट थे,
or these components are precise, these components are precisely described by fundamental rights in Indian constitution. Okay, so in next class we will discuss the differentiation between Indian secularism and Western secularism and French secularism. So far we have discussed Indian secularism, what are the principles and strengths of Indian secularism, and what are the constitutional provision which are supporting Indian secularism. So hope so whatever we have discussed in this class आपको अच्छे से समझ में आया होगा. Okay, thank you so much.